میرے مصطفیٰ کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے. ایک پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں. پیغام جب اس تم وقت میں رکے ہو تو ایک پیغام میری تقریر سے حاصل کر کے جاؤ. اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ. اپنے آپ کو پہچانو. ہم ہیں کیا؟ ہم ہیں کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور جو یہ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، یہ کام چل رہا ہے. سب سے پہلا مدرسہ میرے مصطفیٰ نے جو رکھا تھا اس کا نام اصحاب صفہ ہے، جہاں صحابہ پڑھتے تھے اور میرے مصطفیٰ پڑھاتے تھے. مسجد میں دو محفل لگی ہوئی. ایک محفل میں ذکر اللہ ہو رہا تھا، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اور دوسری محفل میں علم دین کی باتیں چل رہی تھی. مصطفیٰ علم دین والی محفل میں بیٹھ گئے. تو کیا پتا چلا؟ امام غزالی منہاج العابدین میں فرماتے ہیں عبادت سے پہلے علم ہے. علم نہیں ہوگی تو وضو نہیں کر سکتے. علم نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھ سکتے. علم نہیں ہوگا تو سجدہ کیسے کیا جائے پتہ نہیں. علم نہیں ہوگا تو تحیات یاد نہیں ہے. علم نہیں ہے تو رکوع اور سجود میں کیا کیا واجب ہے، کیا کیا فرض ہے، کیا کیا سنتیں ہیں، یہ سب کچھ معلوم نہیں ہوگا. نماز کا سسٹم کیا ہے، نماز کے فوائد کیا ہے، نماز کی گراوٹ کیا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا. اسی لیے علم ضروری ہے. جب علم حاصل ہوتا ہے تب اللہ کی پہچان ہوتی ہے. جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے تب اللہ کی عبادت ہوتی ہے. یہ مدرسے ہیں جو ایمان بھی بچاتے ہیں، جو عقیدے بھی بچاتے ہیں. مدرسے اللہ اکبر کبیرہ. تم اسلام کی تاریخ پڑھو. لاس بات بتا دوں، بات ختم کر لو. اسلام کی تاریخ، اسلام کی ہسٹری پڑھو. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا، آپ نے دیکھا سارے لوگ جانی دشمن بن گئے. مصطفیٰ کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا. کیا؟ جس کو کہتے ہیں حب کا پانی پن. اللہ مصطفیٰ راہوں سے چلتے ہیں تو راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں. مصطفیٰ جب نماز میں پڑھتے ہیں تو آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی پشت پر اوجھڑی ڈالی جاتی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اور خاتون جنت فاطمہ زہرا اپنے ننھے ننھے قدم سے اپنے مصطفیٰ اپنے بابا جان کی پشت سے اس اوجھڑی کو اٹھاتی ہے. اور اسلام پہچانو. اسلام خواتین یہاں پر موجود ہیں. میری ماں بہنیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا نام حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت سمیہ یہ اسلام لائیں. اسلام لانے والوں میں ان کا 7واں نمبر ہے. 7واں. صرف 6 مسلمان، 7ویں مسلمہ حضرت سمیہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے اس دور میں ایمان لانا کوئی آسان نہیں تھا، بڑا مشکل. تو یہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی. غریب گھر سے بے بس تھی. پہلے غلام تھی، کنیز تھی. ان کو آزاد کیا گیا تھا. جب آزاد ہوئی تو مصطفیٰ پر ایمان لے آئی اور مشکلوں کو بڑھا دیا. میرے بھائیو ادھر بیٹھو. بھائی صاحب ہلو، بس تھوڑی دیر چائے مت پلائے. پہلی چائے ساتھ میں پیوں تمہارے. ادھر سن لو، ادھر سن لو. درود شریف پڑھ کے سنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ سن لو، بات ختم کر لو. حضرت سمیہ یہ 7ویں مسلمان، 6 مسلمان پہلے اور 7ویں مسلمان کا نام حضرت سمیہ. جب حضرت سمیہ ایمان لے کر آئیں، ایمان لانا اتنا آسان نہیں تھا. ایمان لانا ایسے تھا جیسے شہادت کا ہمیں قدم رکھنا، جیسے اپنے گھر کو اجاڑ دینا. اللہ اللہ. جب کافروں کو حضرت سمیہ کے ایمان کا پتہ چلا، جب ابو جہل کو حضرت سمیہ کے ایمان کا پتہ چلا، حضرت سمیہ کے ایمان کا جب شہرہ ہوا، ابو جہل کو جب پتا چلا، ابو جہل نے حکم دیا سمیہ کے گھر کو چلا دیا جائے. مسلمانوں، اگر تمہارے جسموں میں اگر پتھر کا ٹکڑا نہیں، اگر گوشت کا لوٹ رہے تو تمہارا دل مچل جائے گا. اور اس محفل سے کچھ پیغام لے کر جاؤ گے. ابو جہلی جو آتنکوادی تھا، جو ٹیررسٹ تھا، جو سب سے بڑا شیطان تھا، اللہ اللہ، اس نے حکم دیا
सुमैया का घर को जला दिया जाए। अब ये लोग सुमैया के घर पे पहुंच गए, इन्होंने हमला कर दिया। लोगों ने पूछा, काफिरों ने पूछा, हमने सुना है तुम मोहम्मद पर ईमान ले आई हो। सुमैया ने कहा हाँ हाँ मैं मोहम्मद पर ईमान ले आई हूँ। सुमैया से लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे घर को जला देंगे। हजरत सुमैया ने कहा था अरे घर जलाओ या मेरा जिस्म जलाओ, ये मेरी जान मुस्तफा पे कुर्बान हो चुकी है, अब मैं तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ। अबू जहल ने हुक्म दिया, हजरत सुमैया के घर को जला दिया गया, उनके बिस्तरों को जला दिया गया, उनकी दीवार को जला दिया गया। और यही तक महदूद नहीं है, हजरत सुमैया और आपके शोहर यासिर को, आपके बेटे अम्मार को कैद कर लिया गया। आपके पैरों में जंजीरें डाल दी गई और जंजीरें जब डाल दी गई, अल्लाह अल्लाह पूरे शहर में घुमाकर खचेड़ते हुए कैद खाना ले जाया गया। अबू जहल के लोगों ने हजरत सुमैया, उनके शोहर, उनके बेटे को जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया। पूरे रात में खाए बेखाए गुजरी है। जब रात गुजर गई, इन जालिमों ने बस नहीं किया, हजरत सुमैया और आपके शोहर, आपके बेटों के जब पैरों में जंजीरें डाली, हाथों को बांध दिया गया। अब इन्होंने इनकी जंजीरों को, जो बस्ती के कुछ पागल लोग थे, पागल जो मजनू होते हैं, जो अच्छाई बुराई में तमीज नहीं कर सकते, उनके हाथ में लगाम दे दी गई। अल्लाह अल्लाह पूरे शहर में घुमाया गया। हजरत सुमैया के बालों को घसीटा गया, हजरत सुमैया के कोई टांगों को नोचता है और जमीन पर खचेड़ा जाता है। अल्लाह अल्लाह अबू जहल सोच रहा था कि सुमैया पे थोड़ा जुल्म होगा, सुमैया अपने ईमान से फिर जाएगी। अबू जहल सोच रहा था मुसलमानों को तकलीफ दी जाएगी, ये मुसलमान अपने दीन से फिर सकते हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा, अरे गोश के लोकड़े से कान से सुनो, दिल की आंख से सुनो, अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करने की कोशिश करना। अल्लाह अल्लाह जब अबू जहल ने जुल्म सितम किया, अबू जहल के जुल्म सितम के बाद हजरत सुमैया के होठ हिलते हैं। काफी सोच रहे थे ये अपने नबी का इनकार कर देगी, ये हमारे बुतों की तारीफ करेगी, हो सकता है अब ये अपने ईमान से बाहर आ जाओ। लेकिन तारीफ गवाह है, जब हजरत सुमैया ने लब खोले थे तो यही कहा था अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है। अल्लाह 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 एक है, मोहम्मद उसके रसूल है। इन जालिमों ने जब इतना सुना, इन जालिमों और जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढा दिए। यही तक महदूद नहीं है, हर दिन ऐसा होता रहा, हर दिन ऐसा होता रहा। जब किसी भी तरह से सुमैया को नहीं पिघलाया गया, एक दिन हुआ है तपती हुई रेत पे हजरत सुमैया को ले जाया गया। आपके तपती हुई रेत पर और लोहे की गुलमेगे पिघलाकर हजरत सुमैया के जिस्म पर दागी गई, हजरत यासिर के जिस्म पर दागी गई, हजरत अम्मार के जिस्म पर दागी गई। अल्लाह अल्लाह तपता हुआ रे, अरे जो सऊदी में रहते हैं उन्होंने अगर दोपहरी का वक्त देखा है तो वो जानते हैं हमारी यहाँ पर एसियां भी मौजूद है, हमारी मस्जिदों में पंखे भी मौजूद है, हमारी यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है।
तशद्दुद बढ़ा दिया गया। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया जब इस अजाब से, एक दिन का मामला नहीं था, 2 दिन का मामला नहीं था, पहले ये मामला था। हजरत सुमैया एक दिन अपने घर को जा रही थी, अबू जहल मिल गया, कहने लगा ए सुमैया क्या तुम्हें इस्लाम से यूं नहीं मोड़ना है? अल्लाह अल्लाह, इतने में मुस्तफा भी आ गए। मुस्तफा को जब सुमैया ने देखा तो मुस्तफा से सुमैया कहने लगी मैं गवाही देती हूँ अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है। सुमैया के इस कुर्बानी वाली साल जज्बे को देखा था तो सुमैया ने, मुस्तफा ने कहा था ए इब्ने यासिर, ए आले यासिर, तुम सब्र करो, इसका बदला जन्नत है, जन्नत। अल्लाह अल्लाह, जब एक दिन और होता है, अबू जहल रास्ते में मिल गया, कहने लगा सुमैया बाज नहीं आओगी? कहने लगी नहीं नहीं। कहा सुमैया ने कहा अगर दौलत में बिकी होती तो मैं इस दौलत को छोड़ देती, अगर मैं माल और सर पर बिकी होती तो मैं उसको तर्क कर देती। अबू जहल ने कहा था किस नाम पर बिकी हो? कहा मोहम्मद के नाम पर बिकी हो। मेरा दिल दुनिया से खाली हो गया है, मेरे दिल में है तो मुस्तफा का इश्क है, अगर मेरे दिल में है तो अल्लाह का डर है। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने कहा था सुमैया हम तुम्हें मार डालेंगे, सुमैया हम तुम पर और ज्यादा जुल्म और तशद्दुद करेंगे। सुमैया ने कहा अरे जान मांगेगा, जान तो जान लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान अल्लाह अल्लाह। अबू जहल झुंझलाया, अबू जहल झुंझलाया, अबू जहल ने हथियार निकाला, हथियार निकालने के बाद हजरत सुमैया पे चलाया। जब हजरत सुमैया पे चलाया, हजरत सुमैया की गर्दन से छुपा हो गई, हजरत सुमैया शहीद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन सुमैया का खून आज भी तड़प तड़प कर इस उम्मत की ख़वातीन को ऐलान कर रहा है, ए ख़वातीन उम्मत, मुस्तफा के खातिर अगर जान देनी पड़े तो जान दे देना, लेकिन वो ईमान न देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत, मज़हब-ए इस्लाम, मज़हब-ए इस्लाम, औलाद-ए रसूल, सैयद अफरोज़ मियां साहिब क़िबला, सैयद अफरोज़ मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत सुमैया उस खातून का नाम है जिसने इस्लाम की राह में अगर किसकी कुर्बानी शहीद हुआ है तो वह खातून हजरत सुमैया की कुर्बानी है। सारी कुर्बानियां बाप में हुई हैं। इस इस्लाम को सबसे पहले अगर किसी के खून ने सींचा है तो वह खातून हजरत सुमैया ने अल्लाह यही पर बस रही है। इन जालिमों ने उनके शोहर यासिर को बुलाया, हजरत यासिर को भी शहीद कर दिया। अब बेटे बचे अम्मार अफसुर्दा हो गए, मुस्तफा की बारगाह में पूछे या रसूल अल्लाह मेरी माँ शहीद हो गई है, मेरे बाप शहीद हो गए हैं। मुस्तफा ने फरमाया ए अम्मार सब्र करो, सब्र करो, जन्नत है जन्नत। जब ग़ज़वा-ए बदर आया, अबू जहल मारा गया, मेरे मुस्तफा अबू जहल के पास गए, अम्मार को बुलाया और कहा मारा, देखो तुम्हारे माँ के मुजरिम से अल्लाह ने इंतकाम ले लिया है। आज तुम्हारी माँ का मुजरिम, आज तुम्हारी माँ का कातिल देखो बदर में कैसे पड़ा है। जो अपने आप को बादशाह कहलाता था, जो अपने आप को हाकिम कहलाता था, तो अबू जहल सय्यदुल बागी कहलाता था। अल्लाह अल्लाह, यहीं तक महदूद रही है। फिर मुस्तफा ने अम्मार के हाथ को पकड़ा और इस तरह से बुलंद किया और कहा लोगों सुनो, जो अम्मार से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जिसने अम्मार से दुश्मनी की उसने मुझ मोहम्मद से दुश्मनी की। तो अम्मार और हजरत सुमैया ने यही पैगाम दिया है, अरे जो चाहे कर डालो, माल की बात आओ माल दे दो, जान की बात आओ जान दे दो, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न दो। और उनका पैगाम यही था जो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा